Good morning, all of you. Welcome to GN Virtual Classes CTET एग्ज़ाम 2024। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜਾਂਗੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਹਿਸਟਰੀ, ਮੈਡੀਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ, ਜੋ 20 ਨੰਬਰ ਦੀ ਆਣੀ ਸੀ CTET ਤੇ PTET ਤੇ 15 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਣਗੇ, 15 ਕੁਐਸਚਨ ਆਣਗੇ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू ਨੂੰ वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन पॉलिटी जो अपना अज सबजैक्ट है, इसका नवा टॉपिक अज पढ़ांगे। फर्स्ट टॉपिक है इंडियन पार्लीमेंट, संसद भवन, इनू कंप्लीट करांगे। उस तो बाद प्रेजिडेंट, इस कंपोनेंट नू कंप्लीट करांगे। तो सब तो पहला इंडियन पार्लीमेंट जो कि आर्टिकल 79 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਾਰ MCQ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਆਰਗਨਸ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ 3 ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਇਹ 3 ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲ 52 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਆਰਟੀਕਲ 81 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਆਰਟੀਕਲ 80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ 3 ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲ 52 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹਾਊਸ ਹੁੰਦੇ ਆ? 2 ਹਾਊਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, एक लोक सभा, दूजा राज सभा। जो लोक सभा हुंदा है वो लोअर हाउस हुंदा है ते राज सभा अपर हाउस। ठीक है। ते कंपोजिशन ऑफ लोक सभा किवें बनदी है? लोक सभा आर्टिकल 81 दे विच हैगी है। इस दे मैक्सिमम मैंबर हुंदे आ 550। ये क्वेश्चन पूछा जाता है भी लोक सभा दे वध तों वध किन्ने मैंबर हुंदे आ? 550। ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਦੇ 543। ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 543 ਦੀ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ 545 ਮੈਂਬਰ ਸੀ। 2 ਮੈਂਬਰ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਜਾਤੀ ਇੱਕ ਜਾਤ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਐਂਗਲੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਇੰਡੀਅਨ ਭਾਰਤੀ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ 104 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਜਾਤੀ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਕਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ योग्यता। लोक सभा का मैंबर बनने की योग्यता की होनी चाहिए? पहला है परसन मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक हो। दूजा है मिनिमम एज ऑफ 25 ईयर ओल्ड, घट तो घट 25 साल की उम्र पूरी कर चुकिया हो। नो बेनिफिट गौरमेंट जॉब, कोई गौरमेंट जॉब ते ना हो, कोई पागल दिवालिया ना हो, इनोसेंट माइंड ना हो। तो ये क्वालीफिकेशन की जो गल आ जाती है, क्वालीफिकेशन के विचों सिर्फ एज ही पूछनी है। इसकी मिनीमम एज कितनी होंगी है? 25 ईयर ओल्ड, घट तो घट 25 साल की उम्र पूरी कर चुकिया हो। इस बाद नैक्सट इलैक्शन ऑफ मैंबर ऑफ पार्लीमेंट। जो मैंबर ऑफ पार्लीमेंट की इलैक्शन, जिस व्यक्ति को राइट टू वोट का अधिकार है उसनूं चुन सकता है। और राइट टू वोट का अधिकार किसके कोल हुंदा है? जिसकी एज 18 साल होगी होवे या इस तो वध होवे। मिनीमम एज ही होंदी है 18 साल, उन्होंने राइट टू वोट दिता जाता है, वोट पाने का अधिकार दिता जाता है, वो चुन सकता है लोक सभा का मैंबर। इस तो बाद टर्म हुंदा कार्यकाल, भी एक लोक सभा का मैंबर किन्ने समय लई अपनी पदवी ते रह सकता है। उसका टर्म हुंदा है 5 साल ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਟਰਮ 5 ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੁਬਾਰੇ
ਉਸ ਉਹ ਰੀਇਲੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਮਤ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਦਾ ਟਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 5 ਈਅਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਰਮ। ਕੋਰਮ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਰਮ। ਕੋਰਮ ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ, ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਾ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਰਮ। ਕੋਰਮ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1/10, 1/10, 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ। 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕੋਰਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕੋਰਮ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਜਲਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਵਾਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਪੀਕਰ ਆਫ ਲੋਕ ਸਭਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 3 ਸਪੀਕਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਟਮ ਸਪੀਕਰ, ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਟਮ ਸਪੀਕਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪ੍ਰੋਟਮ ਸਪੀਕਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣਦੇ। ਹੁਣ ਸਪੀਕਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 'ਚ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਹੈਗੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਐਮ ਥੰਬੀ ਦੁਰਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਤੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਆਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, 0 ਆਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਸਪੀਕਰ ਐਬਸੈਂਟ ਹੈ, ਸਪੀਕਰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਪਦਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਉਸ ਪਦਵੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟਮ ਸਪੀਕਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਪੀਕਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ, ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਐਨੂਅਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ, ਇਹ ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਜੋ ਹਾਊਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ। ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੈ ਉੱਪਰਲਾ ਸਦਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹਾਊਸ, ਕਦੇ ਡਿਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਇਹ 80 ਦੇ ਵਿੱਚ, 80 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ 250, ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ 245। 245 ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। 245 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 238 ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਪੀ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਦੇ 31 ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 12 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ 12 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ। ਕਿਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ? ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ। ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ? ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲਿਟਰੇਚਰ, ਆਰਟਸ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ, ਸਾਇੰਸ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਤ, ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ 12 ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ।
इस तो बाद आ जाता है सैकेंड पॉइंट राज्य सभा का क्वालीफिकेशन ऑफ राज्य सभा मैंबरस। राज सभा का मैंबर बनने की योग्यता की होंगी है। पहली योग्यता सारे लिए सेवाएं परसन मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक होवे। ते दूजी मिनीमम एज ऑफ 30 ईयर ओल्ड, घट तो घट 30 साल। लोक सभा की उम्र 25 साल, राज सभा की उम्र 30 साल हो। बाकी एज ही इस पूछा जाता है, कोई लाभदायक पदवी ते ना होवे, पागल ना होवे, कर्जेदार ना होवे, दिवालिया ना होवे, इस तरह दियाँ क्वालीफिकेशन हो गई। लेकिन इस ते क्वालीफिकेशन ते एज ही पूछा जाता, 30 साल की उसकी उम्र होंगी। इस बाद नैक्सट आ जाता टर्म। राज्य सभा का मैंबर किन्ने समय लिए चुनिया जाता है, तो इसका टर्म है 6 साल। ये 6 साल लिए चुनिया जाता है। 6 साल के लिए फिर नवे मैंबर चुने जाएंगे, 6 साल के लिए फिर नवे मैंबर चुने जाते। इस तो बाद नैक्सट आ जाता कोरम हिस्सा 1/10। 1/10 इसका हिस्सा होंगे कोरम। मीटिंग शुरू होने दी राज सभा का जोड़ा कोरम 10वां हिस्सा मैंबरों का होना चाहिए। इस बाद नैक्सट आ जाता सैशन। सैशन साल के 2 बार होना चाहिए। 6 महीनों के घट तो घट एक सैशन होना जरूरी है। ये सैशन हैगा सी। इस तो बाद हुण जो राज्य सभा है उसकी कार्रवाई नूं चलाण दे लई किहड़ा व्यक्ति है जो उसकी कार्रवाई नूं चलांदा है, उसका नाम चेयरमैन हुंदा है, चेयरमैन ऑफ राज्य सभा। ये चेयरमैन ऑफ राज्य सभा कौन हुंदा है? वाइस प्रेसिडेंट ही चेयरमैन ऑफ राज्य सभा हुंदा है। हुण वाइस प्रेसिडेंट कौन है? मिस्टर जगदीप धनकर। तो जगदीप धनकर ही वाइस प्रेसिडेंट हैगे हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट ही चेयरमैन ऑफ राज्य सभा दे। इस तो बाद इसने की होंदा है अपनी सदन की कार्रवाई चलानी है। जिवें स्पीकर लोक सभा का अपनी सदन की कार्रवाई चलाता है, तो चेयरमैन ऑफ राज्य सभा भी इदा ही चलाता है। मीटिंग अटेंड करवाता है, बिल पास करवाता है, तो सदन में मर्यादा जो डिसिपलिन है उसको बनाई रखता है। क्वेश्चन आर 0 आर चेयरमैन की परमिशन नाल ही सारिया चीज़ां शुरू होंदियां। एक चेयरमैन, दूजा हुंदा डिप्टी चेयरमैन। डिप्टी चेयरमैन हैगा हरिवंश नारायण सिंह। हुण डिप्टी चेयरमैन ने चेयरमैन की एबसेंट दे विच ही काम करना हुंदा। इन केस प्रेसिडेंट की डैथ हो गई, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन गया, तो उत्थे फिर वाइस डिप्टी चेयरमैन काम करेगा। चेयरमैन नूं कोई भी वर्क पै गया, डैथ हो गई या काम करते चले गए थे, तो उस तो बाद डिप्टी चेयरमैन ही सदन की कार्रवाई चलाता है। नैक्सट आ जाता हुंदा है टाइप्स ऑफ सैशन। टाइप्स ऑफ सैशन 3, बजट सैशन, मानसून सैशन ते विंटर सैशन। इस तो बाद जाता टाइप्स ऑफ बिल ऑफ पार्लीमेंट। सदन के बिल होंगे 3-4 तरह के। एक क्वेश्चन आ जाता भी 4 तरह के बिल किहड़े होंगे। फर्स्ट हैगा ऑर्डनरी बिल, सैकेंड मनी बिल, थर्ड फाइनैंशियल बिल, फोर्थ हैगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ऑर्डनरी बिल आर्टिकल 107 तो लेके 108 109 तक है। पहला ऑर्डनरी बिल आम बिलों नाल संबंधित हुंदा है। यह ऑर्डनरी बिल लोक सभा राज सभा किते भी शुरू हो सकता है। सधारण बिल बोलते हैं इसको मंत्री या मिनिस्टर मैंबर ऑफ पार्लीमेंट कोई भी शुरू कर सकता है। बिल पर जनता के हित का होना चाहिए, पब्लिक इंपोर्टेंस का बिल होना चाहिए। पहला लोक सभा इसको पास करेगा, फिर राज्य सभा, फिर ये बिल नो प्रेसिडेंट को भेजते हैं, प्रेसिडेंट पास करके ये बिल कानून बन जाता है। कई बार की होंदा है लोक सभा बिल नूं पास करदा, राज सभा नहीं बिल नूं पास करदा, तो राज सभा इस बिल नूं वध तो वध 6 महीनों तक रोक सकता। एक क्वेश्चन आता हुंदा है भी जिहड़ा सधारण बिल है, सिंपल बिल है, राज सभा उसनूं किन्ने टाइम लिए रोक सकता है? 6 महीने। 6 महीने तो बाद का समा हो जाए, ये प्रेसिडेंट इन्हां दा ज्वाइंट सैशन बुलांदा आर्टिकल 108 दे विच, फिर दोनों सुलह करा के बिल नूं पास करा दिता जाता। दूजा हैगा मनी बिल। मनी बिल धन बिल नाल संबंधित होता, जो सरकार नूं कोई पैसे की लोड़ है, कोई प्रोजैक्ट चलाना, पॉलिसी बनानी है, तो मनी की जरूरत होंदी है। यह आर्टिकल 110 दे विच स्टार्ट होंदा है मनी बिल। पहला लोक सभा विच शुरू होएगा, इनू शुरू कौन करेगा? वित्त मंत्री। वित्त मंत्री ही शुरू कर सकता है। तो इस तो बाद ये बिल
लोक सभा पास करता, फिर राज्य सभा इसनूं पास करता है, फिर प्रेजिडेंट इसनूं पास करता। प्रेजिडेंट इस बिल नूं कदे रोकदा नहीं है, क्योंकि प्रेजिडेंट की परमिशन नाल ही शुरू किया गया सी मनी बिल। हुण इत्थे क्वेश्चन आ जाता है भी राज सभा मनी बिल नूं किन्ने टाइम लई रोक लैंदा, पेंडिंग च रख सकदा, इस कोई कार्रवाई नहीं करता। तो राज सभा नूं वध तों वध 14 दिन लई रोक सकदा, 14 डेज। जदों 14 दिन का टाइम लंघ गया, 15वां दिन आ गया, तो वह लोक सभा विच बिल वापस आ जाता है, इट मीन वो पास है। तो राज सभा वालों पास ही समझा जाता, इस करके राज सभा उसनूं पास कर देती है, एवें मनी बिल बन जाता। थर्ड आ जाता है फाइनैंशियल बिल, वित्त बिल बोलते हैं इसमें, जो आर्टिकल 117 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਟੈਕਸਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਿੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ जीएसटी बिल एक फाइनैंशियल बिल है। पहला इसको लोक सभा पास करेगा, लोक सभा से शुरू होएगा। कौन शुरू करेगा? वित्त मंत्री, फिनांस मिनिस्टर ही इसको स्टार्ट करेगा। लोक सभा ने पास करके बिल राज सभा में भेजा जाता है, फिर राज सभा इस बिल नूं पास कर दिंदा है, फिर ये बिल अगे राष्ट्रपति को जाता है, फिर ये बिल कानून बन जाता है। इस तरह वित्त बिल बन जाता है। लास्ट आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। बिलों में लास्ट बिल है संविधानिक संशोधन बिल, जो आर्टिकल 368 विच आ जाता। क्वेश्चन आता है अमेंडमेंट करने का आर्टिकल दसो। आर्टिकल 368 होंदा है। तो पहला ये लोक सभा राज सभा किते भी स्टार्ट हो जाता है बिल। लोक सभा भी शुरू कर सकता, राज सभा भी, मैंबर ऑफ पार्लीमेंट भी इसको शुरू कर सकता, मिनिस्टर भी शुरू कर सकता इस बिल में, कोई भी शुरू कर सकता इस बिल में। तो फिर इस तो बाद यह बिल अगे प्रेजिडेंट को चला जाता है। इस तरह संविधान दे विच सोध करनी होवे उदों स्टार्ट होंदा है बिल। इसनूं तां इस करके संविधानिक संशोधन बिल बोलिया जाता है। ये 4 तरह के बिल हैगे सी। नैक्सट आ जाता है टाइप्स ऑफ मोशन, प्रस्ताव। फर्स्ट प्रस्ताव हैगा एडजर्नमेंट मोशन। एडजर्नमेंट मोशन स्थगित करना। लोक सभा राज सभा किते भी शुरू हो सकता है। जदों कोई कार्रवाई चलती होवे, बहस हो जाए, तो स्पीकर कुछ टाइम लिए सदन की कार्रवाई भंग करके चला जाता है कुछ टाइम लिए, तो इसनूं एडजर्नमेंट मोशन बोलते हैं। थर्ड हैगा कॉल अटेंशन मोशन। कॉल अटेंशन मोशन हुंदा है ध्यान दो मता। कोई बार मैंबर ऑफ पार्लीमेंट या मिनिस्टर सारी सरकार का ध्यान, पूरी पार्लीमेंट का ध्यान कोई करंट की घटना से दवांदा हुंदा है, उसको कॉल अटेंशन मोशन बोलिया जाता है। इस बाद आ जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास का प्रस्ताव। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हुंदा है, अविश्वास का प्रस्ताव की सी? अविश्वास का प्रस्ताव कित्थे शुरू हुंदा है? बिल लोक सभा दे विच बिल शुरू हुंदा है जदों सरकार नूं हटाना होवे तां ये बिल स्टार्ट होंदा है। एक क्वेश्चन आता है भी लोक सभा किस जी कौंसल ऑफ मिनिस्टर है किस प्रति रिस्पोंसिबल है? लोक सभा प्रति रिस्पोंसिबल है। लोक सभा इसनूं पास कर दिंदी है, तो फिर 2/3 मेजोरिटी नाल ये बिल पास हो जाता है। तो फिर कौंसल ऑफ मिनिस्टर ते प्रधानमंत्री नूं रिजाइन करना पैंदा है। जिवें अटल बिहारी वाजपेयी ने 1996 1998 अटल बिहारी वाजपेयी, तो इस तरह यह नो कॉन्फिडेंस मोशन लग्या। पंजाब दे विच भी 2021 दे विच नो कॉन्फिडेंस मोशन चलिया, जिस कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं रिजाइन करना पिया सी, सरकार हार जाती है। तो ये हैगे सी पार्लीमेंट के मोशन। सो स्टूडेंट अज आपां ने पार्लीमेंट के 2 हाउस लोक सभा राज सभा इन्हां नूं पढ़िया, ते 3 पार्लीमेंट के टाइप्स अंग किहड़े ऑर्गन उन्हां बारे जाने। क्वालिफिकेशन की है लोक सभा राज सभा की, दोनों का टर्म कितना हुंदा है, ते कोरम की हुंदा है लोक सभा राज सभा का, ते टाइप्स ऑफ सैशन किन्ने हुंदे हैं। इस तो बाद टाइप्स ऑफ बिल 4 तरह के बिल, ऑर्डनरी बिल, मनी बिल, फाइनैंशियल बिल ते कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आपां कंप्लीट कर चुके हैं। ते टाइप्स ऑफ मोशन एडजर्नमेंट मोशन, कॉल अटेंशन मोशन ते नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये सारिਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत सारे MCQ क्वेश्चन ਜਿਹੜੇ पार्लीमेंट के इस टॉपिक ਵਿੱਚ आ जाते हैं। तो नैक्सट टॉपिक आप नैक्सट टाइम पढ़ांगे। अज ਲਈ मेरा लैक्चर इन्ना ही सी। मैं अपने लैक्चर ਨੂੰ वाइंड अप करन ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਂਗਾ भी साडा जो GN वर्चुअल क्लासेस का चैनल है
ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕਸ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਲਈ ਮੇਰਾ ਲੈਕਚਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।